Okay. This morning when I was sitting to pray on the terrace, इस सुबह जब मैं छत पे प्रार्थना के लिए बैठा था, there was a small bird. I don't know what's the name of the bird, but it came so fast and it just hit somewhere and it just fell as though it was dead. एक छोटी In सी front of me. I mean, I wish I could I just made a video of that to show you all how true it is. और जब मैं वहाँ बैठा हुआ था, Today morning, not yesterday. आज सुबह ही मेरे सामने जब मैं छत पे था, एक छोटी सी चिड़िया इतनी तेजी से उड़ते हुए आई और किसी चीज में भिड़ के गिर गई, जैसे मर गई हो। And it was like dead. And for a moment I said, no. I just went and I just picked it up and I started just patting it. I could see it breathing, and then I took some water from the dispenser and I just put a drop in his mouth and the water. तो मुझे एक पल के लिए लगा जैसे वो मर गई हो चिड़िया, पर फिर मैंने जाके उसको उठाया और उसे ऐसे सहलाया और उसको थोड़ा सा पानी दिया और वो सांस ले रही थी और उसने वो पानी पिया। But it was so like when you get a whack on your head, it's like you don't know which side to turn, and it was with his head down actually, as though. Then I took it to one of the pots. I thought it's cool, so I took it to the pots and I saw crows around. So I said probably this crows will come and attack me. So I was very concerned about the bird. तो वो छोटी सी चिड़िया शायद अगर आपको कभी जोर से लगी है तो आपको पता होगा कैसा लगता है अगर मार खाओ और पता नहीं कहाँ देखो। तो उसी प्रकार से वो चिड़िया भी एकदम, उसको भी नहीं पता था वो क्या करे। तो मैंने उसे उठाया और मैं उसे गमले में जाके रखने जा रहा था, फिर मैंने देखा बहुत सारे कौवे हैं आसपास और शायद वो कौवे उसको हानि पहुंचाते, इसलिए मैंने उसे वहां नहीं रखा। It looked very a good place to put the bird in, and then all of a sudden I said no. If ants come, probably will attack it, or the crows will attack it. So I was very concerned about that bird in the morning. हाँ, तो मेरे दिल में उस चिड़िया के लिए बहुत मैं उस चिड़िया के लिए मेरे दिल में चिंता थी कि मैं उसका कैसे देखभाल करूं, चाहे वो बस एक छोटी सी चिड़िया है, पर तभी भी उस छोटी सी चिड़िया ने मेरे दिल में अपने लिए स्थान बनाया। तो मैं उसे गमले में नहीं रखना चाहता था, सोच के कि शायद आके चींटियां उसे काटे या कौवे काटे। Then I took the bird and I kept it on my seat. तो मैंने उस छोटी सी चिड़िया को लिया और जहाँ मैं बैठता हूँ मैंने उसको वहाँ रखा। And again the head was down. और उस चिड़िया का सर नीचे था, जैसे वो मर गई हो। Then I use water spray to iron my clothes in the morning. So I just said, let's give it a nice. When you go to the what do you call it, to the barber, right? Barber puts a lot of spray of water on your face. Yeah, Jason, when you have a haircut and he just sprays your face and you feel good. So I took the spray and I started spraying the bird. तो ये शायद जब आदमी इसमें बाल कटाने जाते हैं उनके मुंह में भी पानी छिड़कते हैं। मेरे मुंह पे आज तक किसी ने पानी नहीं छिड़का, पर उसी प्रकार उन्होंने चिड़िया पे भी पानी छिड़का कि शायद उसको ताजगी महसूस हो। And then when I started getting ready, I said I have to come down on time, and I was ready, got ready, and when I got ready and I was going out, I saw the bird. When immediately I went to see it, the bird started flying and he flew again and he hit again. और फिर मैं तैयार हुआ और फिर नीचे आने से पहले मैंने सोचा मैं जाके देखूं चिड़िया कैसी है। तो He hit the glass. जब मैं चिड़िया के पास गया वो अचानक से दोबारा उड़ के जाके शीशे में भिड़ गई दोबारा। And again he landed on a nice soft surface. I said, you know what? And over there the door was open for it to fly out again. So I'll go back up and I'll see it later. But I was just amazed at God showing me certain things about how to revive the dead situation. वो फिर चिड़िया दोबारा वहाँ भिड़ी शीशे में और फिर एक मुलायम सी जगह पे जाके वो गिरी। तो फिर मुझे नीचे आना था, तो वहाँ खिड़कियाँ खुली हुई हैं, तो फिर जब यहाँ हम खत्म होएगा तो फिर मैं जाके देखूंगा वो चिड़िया कैसी है। पर मैं इतना हैरान था कि प्रभु किस तरह से मुझे दिखा रहा है कि मरी हुई परिस्थिति, मरे हुए लोगों को मरी हुई परिस्थितियों को, लोगों को कैसे हम
life, give them जो joy एक नया again. जीवन दे सकते हैं। Amen. And I believe that we are all responsible for that. और ये काम हर एक हम में से हर एक का है कि मरी परिस्थितियों को या लोगों को जिनको लगा है कोई आशा ही नहीं है, कैसे हम दोबारा आशा और जिंदगी ला सकते हैं। This morning I want to speak about the doors. इस सुबह मैं आपसे दरवाजों के बारे में बात करना चाहता हूँ And next Sunday I'm going to speak about the gates. और अगले हफ्ते हम फाटक के बारे में बात करेंगे। And I'm going to speak about the floodgates. You know what floodgates are? और बाढ़ द्वार Floodgates, when you go to most of the dams, बांध के द्वार you know they have floodgates. So only when the gate is open, water flows out, right? And then it goes to different places. तो अगर आप कभी डैम को जाके देखें वहाँ उस बांध के द्वार होते हैं और जब वो खुले सिर्फ तभी उनमें से पानी निकल के हर जगह जा सकता I'm going to speak next Sunday on floodgates. Please come and receive about the floodgates. है। और अगले हफ्ते में उन बांध के द्वार के बारे में बात करूंगा, तो आप जरूर आके Today I'm going to speak about the opportunities, the doors of opportunities. और आज मैं बात करूंगा जो हमें द्वार होते हैं कुछ हासिल करने के। There are days in our lives ordained by God और हमारी जिंदगी में दिन है जो प्रभु ने हमें जो दिन दिए हैं He gives us an opportunity. और वो हमको एक मौका देता है। And if you do not seize that opportunity at that very moment, the door shuts. और अगर हम उस मौके का फायदा उस पल में ना उठाएं तो दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं। Have you noticed that doors are always kept shut? क्या आपने कभी गौर किया है कि दरवाजों को हमेशा बंद रखा जाता है? Then what's the use if the doors are going to be kept open all the while? What's the use of a door? और अगर दरवाजे को हम हर समय खुला रखेंगे तो दरवाजे का फायदा ही क्या है? Yes or no? हाँ या ना? There is a certain time in the evening और शाम में थोड़े से समय के लिए where the door is, if the door is kept open, mosquitoes come in. और शाम में ऐसा एक समय होता है अगर आपके दरवाजे खोले हो तो मच्छर अंदर आ जाएंगे। Yes. And yesterday evening when we were sitting and we were talking, I said, I was sitting in that corner and I said, shut the doors, mosquitoes are coming in. और कल शाम को हम यहाँ बैठे थे तो मैंने बोला कि ये दरवाजा बंद कर दो क्योंकि मच्छर अंदर आ गए। In the same way, there are times in our lives that God gives us opportunities. उसी प्रकार हमारी जिंदगी में भी ऐसा समय आता है जब प्रभु हमको एक मौका देता है। And you need to understand that you need to seize the opportunity at that very moment. You know what? I'm going to enter in. और उसी पल जरूरी है कि हम उस मौके को लें और अंदर आएं। Because the moment it shuts, you cannot get back in. क्योंकि एक बार वो दरवाजा बंद हो जाए आप वापस अंदर नहीं जा सकते। Yes or no? Church? That's why the doors have got locks and keys. इसीलिए दरवाजे की ताला और चाबी होती है। And it is so important that the person inside the house has to open the door. और जरूरी है कि जो इंसान अंदर है उसको दरवाजा खोलना है। Not the person outside. Does the person outside open the door? क्या जो Unless you have the key. तो जो बाहर खड़ा है वो दरवाजा नहीं खोल सकता। अगर उसके पास चाबी है तो खोल सकता है, नहीं तो नहीं खोल सकता। In our lives, in each of our lives, God gives us doors of opportunities. तो हमारी जिंदगी में भी प्रभु हम सबको द्वार देता है जिनके कोई मौका उनके साथ जुड़ा हुआ होता है। You may be in a business. शायद आप बिजनेस में You may be walking on a road. या आप सड़क पे चल रहे हो। You may go to a swimming pool. या शायद आप स्विमिंग करने गए हो। You may go to do a big business deal. या आप कोई बड़ा बिजनेस डील करने गए हो। You may be wanting to earn 1 crore. शायद आप चाहते हैं कि आप 1 करोड़ कमाएं। You'll get only 1 crore. तो फिर आपको सिर्फ 1 करोड़ ही मिलेगा। ओह, 1 कौवा मिलेगा। You understood? If your intention and you're not prepared to enter the door is going to shut. तो अगर आप तैयार नहीं हैं दरवाजे में अंदर घुसने के लिए तो दरवाजा बंद हो जाएगा। In the same way, I was just meditating. I said, Lord, what do you want me to talk this morning? I want you to speak to me and
each one of our hearts this morning, oh God, Lord, that whenever we get a door of opportunity that comes our way, are we sharing the gospel? तो इस जब मैं प्रभु से प्रार्थना कर रहा था और बोल रहा था, प्रभु मुझे ऐसा वचन दीजिए कि मैं दूसरों को भी ये समझा पाऊं कि जब भी हमें मौका मिलता है हम प्रभु का सुसमाचार लोगों से बांटें। In my office, whenever I give first priority, if a person is willing to listen to the gospel, I'll keep all the other clients waiting. तो मैं अपने काम पे अगर कोई भी क्लाइंट जो आए अगर वो सुसमाचार सुनने के लिए तैयार है तो मैं वो मौका लेता हूँ और उसको सुसमाचार देता हूँ, चाहे बाकी बाहर क्यों कितने लोग ना रुके हों। I went the other day to meet one of the chief officers. कुछ दिन पहले मैं एक चीफ ऑफिसर से मिलने गया And then when we were sitting and we were having chai, और हम वहाँ बैठे चाय पी रहे थे and when we were having chai, there was another person speaking highly about the chief officer. और वहाँ एक और व्यक्ति था जो उस चीफ ऑफिसर के बारे में बहुत ही अच्छे से बात कर रहा I था said, good. और मुझे लगा ये अच्छी बात है And Vivek was with me. और मेरे साथ विवेक भी था, He is a witness. उसने ये सब बोलते हुए देखा है And I saw that nobody was in the room except Vivek, that man and me. और उस कमरे में और कोई नहीं था, सिर्फ मैं था, विवेक था और वो दूसरा आदमी था। And I saw it as a door of opportunity. और मैंने देखा जैसे ये मुझे प्रभु एक मौका दे रहे हैं I said, can I pray for you? और मैंने बोला कि क्या मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूँ? He said, yes. और उसने बोला हाँ I prayed for him. और मैंने उसके लिए प्रार्थना करी। Vivek is Pujari. What is he? पंडित। Pandit. तो विवेक पुजारी है और वो आदमी पंडित था। So I said, you're a Pandit? I have a Pujari here. मैंने उससे बोला तुम पंडित हो, मेरे पास पुजारी है। Now this is true story. और ये सच्ची कहानी Just है। last week. बस No, not पिछले last week. This week. इसी This हफ्ते week घटी, on Monday. इस मंडे को ही घटी है। I'm not giving you old stories, church. I'm giving you taza khabar. You don't need to go to Herald. You don't need to go to Navin Times. Go on newspaper, no newspaper. I'll give you taza khabar, and that is the word of God. Our God is always taza. It is the taza. Okay. So I seized an opportunity. That was just that window, that door of opportunity, and I prayed with him. तो बस ये छोटा सा ही मौका था जिसको या तो मैं ले सकता था या गवा सकता था, तो मैंने उसको लिया और उस समय में मैं प्रार्थना करी। I led him into a prayer of repentance. He was talking big things, okay? You know how people talk, right? और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, पर मैंने उसके साथ प्रार्थना करी कि वो अपने गुनाह का पश्चाताप करे। And I led him to pray, accept Jesus into his heart. And you know, he said, feeling very good. और उसने यीशु मसीह को अपने दिल में अपनाया और उसने ऐसे लंबी सी सांस लेके बोला कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। I was looking at the chidiya. और The मैं same situation of the chidiya. The chidiya was flying so fast, hit, fell down as though it was dead. I just got revival. And today is the day of revival. Are you ready for the revival? और जैसे सुबह मैंने देखा वो चिड़िया ऐसे तेजी से जाके भिड़ गई, पर फिर मैंने मदद करी कि वो दोबारा उसको ताकत आए। और उसी प्रकार आज सुबह हमारे लिए भी ये मौका है अगर हम उसको अपनाना चाहते हैं। You'll say, no, Lord, I'm just feeling a little lazy today to get up a little early in the morning. और शायद आज सुबह शायद हम में से कोई बोल रहा था कि मुझे प्रभु आलसी लग रहा है कि मैं अभी सुबह नहीं उठना चाहता। I'll come a little later. I'll come after the worship मैं वर्शिप खत्म होने के बाद आऊंगा to listen to the kadak chai that pastor is preparing to give. कि अभी सुबह मुझे ताकत नहीं है, तो मैं सिर्फ चाय जो समय है सिर्फ वही प्राप्त करने के लिए जाऊंगा। Chai and also the word, the bread of life. I give you maska pav. Goans like maska pav. और गोवन को मस्का पाव पसंद है, Yes. तो वो आपको आज मिल रहा है अभी। So this morning I just want you to remember that the door that God opens, no man shall shut. तो प्रभु जो द्वार खोलता है वो कोई आदमी भी उसको बंद नहीं कर सकता। Many times you'll say, but Lord, you know what?
that girl that I'm eyeing, I want to just marry her. Now, तो शायद कोई हमारे बीच में लड़के किसी लड़की को देख के बोलेंगे, प्रभु वो लड़की जिसको मैं देख रहा हूँ मुझे बस अभी ही शादी करनी है। fast forward. कनीश कुछ कहने की कोशिश कर रहा है। And the girl is saying, no, no, that other boy over there is handsome. That's the boy I want to get married to. तो शायद लड़का एक लड़की को देख रहा है, वो लड़की किसी और लड़के को देख रही है और बोल रही है नहीं मुझे उस आदमी से शादी करनी है। No, not the same boy, another person. दूसरे आदमी से। And in the same way, you got to understand that situation will always come to our lives. और ऐसे पल हमारी जिंदगी में आएंगे। But for that situation to come into your life, you have to be prepared to enter the door. Yes. पर ऐसे पल हमारी जिंदगी में आएंगे और उस पल में हमको उस द्वार के भीतर जाने के लिए तैयार होना चाहिए। And only that time the door will open and shut. और उसी पल दरवाजा खोलेगा और बंद हो जाएगा। And you need to seize that opportunity. और आपको उस मौके को हासिल करना है। नहीं शादी करने का. You know what I'm not really about. I'm not talking about. It is more about the preparation. You have to be prepared. You have to always be prepared to enter the door. तो Are you prepared this morning? हमको हर पल तैयार होना चाहिए दरवाजे के भीतर जाने के लिए। क्या इस सुबह हम तैयार हैं? Are you all prepared? क्या हमने मेहनत करके तैयारी की है? Are you all prepared? Yes. Show me all your khadi-khudi. क्या आप तैयार हैं? तो आप मुस्कुराइए। अगर आप नहीं मुस्कुरा रहे मतलब आप तैयार हैं। I'm only talking to the ones who are single and not who are married. जो शादीशुदा है उनके पास अभी कोई पल नहीं आ रहे दोबारा शादी करने के लिए। वो भी तो- बस जब शादी नहीं हुई उनके पास। शादीशुदा भी तो हंस सकते हैं। Okay, let's go to John chapter 5. यूहन्ना 5 पढ़ेंगे। So can read. Jason, read. Read. Verse 1. Nahin, ready? Please. Verse 1 or Who's ready? Come read. After this, there was a Verse 3 onwards. in these 5 verse 3. in these lay a multitude of invalids, blind, lame, John and chapter paralyzed. 5. John chapter 5 verse 3. Okay. Yeah? Got it? In these lay a multitude of invalids, blind, lame, and paralyzed, waiting for the moving of the water. For an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and stirred the water. Whoever stepped in first, after the stirring of the water, was healed of whatever disease he had. One man was there who had been an invalid for 38 years. When Jesus saw him lying there and knew that he had already been there a long time, he said to him, "Do you want to be healed?" The sick man answered him, "Sir, I have no one to put me into the pool when the water is stirred up, and while I am going, another steps down before me." Jesus said to him, "Get up, take up your bed and walk." And at once the man was healed, and he took up his bed and walked. Now that day was the Sabbath. So the Jews said to the man who had been healed, "It is the Sabbath, and it is not lawful for you to take up your bed." But he answered them, "The man who healed me, that man said to me, 'Take up your bed and walk.'" They asked him, "Who is the man and who said to you, 'Take up your bed and walk'?" Now the man who had been healed did not know who it was, for Jesus had withdrawn, and there was a crowd in the place. Afterward Jesus found him in the temple and said to him, "See, you are well, sin no more, that nothing worse may happen to you." The man went away and told the Jews that it was Jesus who had healed him. Amen. 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 Now this lame man was there for how many years? 38. 38 years. Yes.
इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर का स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वह एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों को बाद वह यीशु की मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। Amen. Now we see over here the lame man was waiting for how long? 38 days. और हम यहाँ देखते हैं वो आदमी जो चल नहीं सकता था वो 38 वर्ष से रुका हुआ था। See, it could be that he could not move at all, or it could be that he could walk a little bit. You understood? There is no specification about his condition. शायद वो बिल्कुल नहीं चल पाता था या शायद वो थोड़ा सा हिल जुल सकता था। यहाँ लिखा नहीं है कि उसको क्या दिक्कत थी। But for what it is said over here, I have a feeling that he never wanted to be an excuse. और यहाँ जो लिखा है उसे पढ़ के मुझे ऐसा लगता है कि इस आदमी के पास हमेशा एक बहाना था। He wanted a healing. उसको चंगाई चाहिए थी। But he was not ready to take this step and say, you know what? I am desperate. I am going to just jump. I'm going to just wait, just next to the pool, Magua pool, and I'm just going to jump in. और ये आदमी मुझे लगता है कि चाहे उसे चंगाई तो चाहिए थी, पर वो उस चंगाई के लिए एकदम तड़प नहीं रहा था, क्योंकि शायद अगर ऐसा होता वो एकदम पूल के निकट ही जाके रुकता कि जैसे ही पानी हिले वो उसमें So everyone was waiting for the angels to stir the water. Only when the angels stirred the water, तो सिर्फ जब स्वर्गदूत पानी हिलाते थे, सिर्फ तब जो एकदम अंदर जाए उसको चंगाई मिलती। someone very smart would have said, you know, I want to be on the edge, so I can just fall in. अगर बहुत बुद्धिमान होता Some heads kind of guys. वो सोचता कि अगर मैं एकदम पूल के पास ही लेटूंगी, जैसे ही पानी हिले मैं बस गिर जाऊंगा। Yes or no? You'll not have ideas. तो Come अगर on, आपको church, चंगाई, you're being so super spiritual. अगर आपको सच में चंगाई चाहिए होती या उस व्यक्ति को चाहिए होती तो वो खुद सोचता कि मैं कैसे उस चंगाई को। I feel he was not prepared. मुझको लगता था He did not लगता है prepare himself. कि उसने तैयारी करके नहीं रखी। If not this khopri, you know how it works. क्योंकि जो सच में तैयार होना चाहे वो कुछ ना कुछ सोचेंगे, कुछ हल निकालेंगे। Because they are so smart, no? We will come up with new ideas. ये नहीं होता है हम ये करेंगे। क्योंकि जब हम सच में किसी चीज को चाहते हैं, किसी चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसको पाने के लिए कई सारे हल सोचेंगे। When you enter the door, does someone enter quietly? जब आप दरवाजे के से अंदर जाते हैं, क्या Yes. बहुत ही शांति से अंदर जाते हैं? ऐसे Enter quietly?
द्वार के अंदर। You will just walk in right into the door. That opportunity. आज ही मुझे डील करना है, हाँ या ना? तो अगर उस दरवाजे के उस पार ऐसा कुछ है जिसको आप सच में हासिल करना चाहते हैं, आप इतने आराम से नहीं जाएंगे, आप तेजी से अंदर जाएंगे। Are you preparing yourself for that day which God has planned and ordained for you? पर जो प्रभु ने आपके लिए जो पल और जो मौके तैयार करके रखे हैं, अगर हम सच में उनको हासिल करना चाहते हैं, तो हमको अभी से उसके लिए तैयारी करनी है। क्या हम सब वो तैयारी कर रहे हैं? Ephesians chapter 4 verse 27. Verse 27. तो पढ़ेंगे इफिसियों 4:27। And give no opportunity to the devil. और यहाँ लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो। Now, you got to understand we have doors. और हमको ये समझना है कि हमारे पास दरवाजे हैं। Yes? You believe that you have a door? क्या आप मानते हैं कि आपके लिए एक दरवाजा है? The moment you open the door, और जैसे ही आप उस दरवाजे को खोलेंगे, मच्छर आता है. मच्छर अंदर आता है। Yes or no? Who comes in? Who comes? कौन आता है दरवाजे के अंदर? Who comes in? अगर हम दरवाजा खोलें, कौन अंदर आता है? Evil ones. Opportunity. इसको opportunity चाहिए, अवसर मन, इसको अवसर मिले। We got to remember that the moment you keep your doors open, आपको याद रखना है, जब आप अपने दरवाजे खुले रखते हैं, there are gates and there are doors. तो फाटक है दरवाजे, You have an eye gate, और आपकी एक आंखों का फाटक है। it doesn't say eye door. आंखों का दरवाजा नहीं है। Yes or no? That means from the eye it goes to different area, other doors, darwaja. Yes or no? मतलब आंखों के भीतर जो चीजें आती हैं, वो वहां से अलग अलग द्वारों में जाती हैं। Then we have a ear gate तो हमारे कान के भी फाटक हैं, and we have a mouth gate और मुंह का भी फाटक है, and we have a heart gate. और दिल का फाटक भी। And the heart gate is connected to the. और दिल का फाटक हमारे Arey, मन let's के give the फाटक church a से big hand. जुड़ा Come है। on, church, wake up. Give a big hand to the church. None of you are clapping. Zara Josh say, come on, church. Our God is the living God. Amen. Amen. If you keep your doors open, you are allowing machar to come in. और अगर आप अपने सब ये फाटक खुले रखें और दरवाजे भी खुले रखें, तो आप मच्छरों को आमंत्रित कर रहे हैं अपनी जिंदगी में। You may be Brahmin, चाहे आप ब्राह्मण हो, you may be Shudra, या आप शूद्र क्यों ना हो, you may be Kshatriya, या आप क्षत्रिय हो, or you may be Harijan. या आप हरिजन हो। The machar bites everyone. मच्छर हर एक को काटता है, वो देखता नहीं मैं किसे काट रहा हूँ। He sees, नहीं, this is Shuddha blood. मच्छर के लिए हर खून एक समान है, He wants khoon, and he's waiting for your khoon. और वो आपके खून के इंतजार में है। And you have to be very wise, Baba. Shut those doors, if not machar will come in. और इसलिए जरूरी है कि हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें और हमको वो दरवाजे जिनके द्वारा गलत चीजें हमारी जिंदगी में आती हैं, हमको उनको बंद रखना है। And most of the time we keep which door open? और हम अधिकतर कौन सा दरवाजा खुला रखते हैं? Front door. Heart. अपने दिल का दरवाजा। कुछ होता है, दब होता है, हो चुका, कुछ नहीं होता है, हो चुका। हो चुका है, okay. तो कुछ के लिए अभी हो रहा है, कुछ के लिए हो चुका, कुछ के लिए बाद में।
but the door is going to be open. Yes, amen. The door has to be open. You need to be prepared to open the पर वो door. दरवाजा खुला होना चाहिए, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। And these doors are important doors. You can get into trouble. और ये दरवाजे बहुत ही महत्वपूर्ण दरवाजे हैं और आपको परेशानी में भी डाल सकते हैं। So you need to understand that this is machhar आपको समझना है कि ये मच्छर है or this is not machhar. या ये मच्छर नहीं है, It is up to whom? और वो कौन ये It is up to whom to open that door. और दरवाजा खोलने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी Say, turn to your neighbor and say, me, my door. अपने पड़ोसी को देखिए और बोलिए मेरा दरवाजा। Very important. The door you open, the word of God says, the door that God opens, no man shall shut. The door that God shuts, no man shall open. और प्रभु के वचन में लिखा है कि जो दरवाजा प्रभु खोलता है वो कोई भी आदमी बंद नहीं कर सकता, और जो दरवाजा प्रभु बंद करता है वो कोई भी आदमी खोल नहीं सकता। Out of millions of people on this earth, और इस दुनिया में इतने करोड़ों लोगों में से but God only brings exactly those people into our lives who He wants. He doesn't bring all the machhar. दुनिया में इतने लोग हैं पर प्रभु सिर्फ उन गिने चुने लोगों को हमारी जिंदगी में लाता है जो वो चाहता है हमारी जिंदगी में हो। वो हमारी जिंदगी में मच्छर नहीं लाता। Yes or no? Yes. Don't look at a person and say, oh, he's so nice, tall, dark and handsome. तो सिर्फ जब लोगों को देखते हो सिर्फ ये मत देखो कि हाय वो कितना लंबा है, कितना देखने में कितना अच्छा है। There was a caption, tall, dark and handsome was Bush TV. Earlier when Bush TV came into the picture. Yes? इसको याद है? 80s में. और जब ये बुश टीवी आया था मार्केट में नया नया, तो उसके लिए भी ऐसे ही वो एडवर्टाइज करते थे कि लंबा है और देखने में इतना अच्छा है और रंग भी इतना अच्छा है। खुश हो जा खुश. And many of them, they get carried away and not understanding that you will try and say, you know what, he's so good, no, but he does not know Jesus. और शायद हम सिर्फ बाहर का रूप देख के कोई सोचे कि हाय कितना अच्छा है, पर उसको वो यीशु को नहीं जानता। But he loves me so much, no, पर मुझसे बहुत प्यार करता है, I can change him. मैं उसे बदल लूंगी। Siddhi, who changes? You change or the Holy Spirit बदलने changes? वाला कौन है? हम बदलते हैं लोगों को या पवित्र आत्मा लोगों को बदलती है? Who changes people? कौन किसी का हृदय सच में बदल सकता है? Will you change? क्या हम बदल सकते हैं? क्या आप बदल सकते After you're married, if the person does not know Jesus, you will have bojes every day. Baja. Boje, we call it in Konkani boje. तो अगर जिस व्यक्ति से आप शादी करें, अगर वो यीशु को नहीं जानता, तो शादी के बाद आपको रोज भजिया खाने को मिलेगा। And sometimes you'll get mirchi bhaji. Tick tick. और कभी-कभी बहुत ही तीखी मिर्ची वाली भजिया भी आती है। And then when you have mirchi bhaji, extra what happens? धुआं निकलता है. और अगर भजिया ज्यादा ही तीखी होगी फिर क्या होगा? Okay, church, I know, and you're a so spiritual church, such a holy church we have. But you got to understand one thing: do not make the wrong decision. तो हमको ये याद रखना Don't जरूरी है। marry a person who does not know Christ. If you're married already when you're an unbeliever, then you get to know Christ is a different issue. But do not say, I will change the person. See, I am so smart. तो अगर आप अभी प्रभु में हैं, तो आप ऐसी गलती मत करिए कि आप एक अविश्वासी से शादी करें, ये सोच के कि मैं उसको शादी के बाद बदल लूंगा। पर अगर आप विश्वासी नहीं हैं और फिर आपकी शादी हो चुकी है और अब फिर आप प्रभु में आए, तो वो अलग बात है। The devil is waiting क्योंकि शैतान रुका हुआ है, like a roaring lion, waiting whom he may devour and finish. एक ऐसे गुर्राते बाघ की तरह रुका है
कि वो किस पे हमला करे और उसका नाश करे। The moment you open the door, the devil will enter in. But और अगर आप चौकन्ने नहीं है, जिस पल आप दरवाजा खोलेंगे शैतान अंदर आ जाएगा। and which door? और कौन से द्वार से अंदर आएगा? आपके मन के द्वार। And then you will say, Jesus, you understand my heart? No. और शायद हम फिर शैतान को पहचाने भी ना उस पल में, और हम बोले कि प्रभु तू मेरा दिल जानता है। I can entertain my mind little more. और मुझे अपना मन थोड़ा और बहलाने दे। And nothing happens. I'm spiritual. और शायद हम सोचेंगे कि हम चाहे हमें कुछ नहीं होगा, चाहे हम गलत भी कर रहे हो, अगर थोड़ा सा गलत करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। Christians can get demon possessed. Let's be very clear. और जो लोग प्रभु में विश्वास रखते हैं, उनमें भी शैतान आ सकता है। Don't feel that nothing will happen to you. ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमें कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे हम गलत भी करें, You are not Superman. चाहे हम शैतान को मौके दे रहे हैं, अगर हम खुद ही शैतान को अपनी जिंदगी में आमंत्रित कर रहे हैं, हम ये नहीं सोच सकते कि अब हमें कुछ नहीं होगा। You are not Superman. क्योंकि हम सुपरमैन नहीं हैं, You are not Superwoman. ना ही सुपरवुमन। Yes? You saw how Superman dresses? आपने देखा है सुपरमैन कैसे तैयार होता है? How he dresses? कैसे तैयार होता है? He wears his underwear outside his pants. अगर आपने देखा होगा वो अपने लाल अंडरवेयर पैंट के ऊपर, हम में से क्या ऐसा कोई भी नहीं, किसी ने ऐसे कपड़े नहीं पहने। We are very spiritual church. Let's turn to Matthew chapter 25 and हम मत्ती 25 पढ़ेंगे। 25 verse 42. Am I right? No, it's about the virgins. Is it 42? Hang on. I'm sorry, it's the beginning of 25. Number 1 onwards. और मत्ती 25 में लिखा है, तब स्वर्ग का राज्य उस 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियां में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगीं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। What say? जागते रहो। कब मौका आएगा और चला जाएगा, कब मौका आएगा और चला जाएगा। What does it say later? It says, you read?
Yeah. क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब परदेश चला गया। तब जिसके 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उसने लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। No, I just want to share regarding the how many versions were there? 10. और कितनी कुंवारी औरत थी? 10. Sure. Yes. Turn to your neighbor and say, not 5, 10. Not 5. और आप अपने पड़ोसी को देख के बोलिए 5 नहीं 10। Make anyone is feeling sleepy, say, get up. This is not how many? अगर आपका पड़ोसी सो रहा है तो आप उसको थोड़ा जगा के बोलिए 5 नहीं 10। Okay. How many? There were how many? 5 10. and 5. तो So how many were there? 10. 5 were wise and 5 were foolish. तो 10 कुंवारियां थी, उनमें से 5 मूर्ख थी और 5 समझदार थी। So those you got to understand. When carrying oil, to make oil, olive oil, there's a lot of crushing. You believe that? You know about how olive oil is made? तो अगर आपको ऑलिव ऑयल जब बनाते हैं उसमें बहुत सा कूटने का काम होता है। Yes. And when we see that there is a lot of crushing, only through the crushing oil is released. और उसमें कूटने के बाद ही तेल निकल के आता है। Yes, only through the crushing. And you got to understand that through the crushing that we go through in our lives, और जब हमारी जिंदगी में हमें लगता है कि हम ही को कोई कूट रहा है, yes, when there is crushing happening, oil is released. और जब हम ऐसी मुश्किल परिस्थितियों से निकल के जाते हैं तो हम में से भी तेल निकलता है। Yes, we have to understand that God tells us that we need to be alert and ready. तो प्रभु हमें बोल रहा है कि हमको चौकन्ना रहना है और हमको तैयार रहना है। When the bridegroom arrived, क्योंकि जब दुल्हा आया, what happened? क्या हुआ? 5 बजे. The foolish virgins, what he said? Arey, give me some of your oil. तो जब दूल्हा आया तो जो मूर्ख कुंवारियां थी वो दूसरे समझदारों से बोलने लगी कि मुझे प्लीज तेल दे दो। You got extra, na? तुम्हारे पास और है, Give me that oil. तो जो तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो। But the wise virgin says, no. Go and get for yourself more. तो समझदार वाली कुंवारी ने बोला मेरे पास जितना है वो हम दोनों के लिए काफी नहीं होगा, तो तुम जाके अपने लिए और खरीद के लाओ। The foolish went और जो मूर्ख कुंवारी थी वो गई to bring more oil, तेल खरीदने। and when they came back, और जब वो तेल खरीद के वापस आई तो the door was shut. तब तक द्वार बंद हो गया। You got to understand there is a window of opportunity. There is a door of opportunity. God will give you that door, and if you do not enter in, क्योंकि द्वार सिर्फ उतने ही समय के लिए खुला रहा। जब द्वार खुला था तो समझदार वाली अंदर चली गई, जब तक मूर्ख वाली वापस आई दरवाजा बंद हो चुका था। तो उसी प्रकार हमारे लिए भी मौका सिर्फ थोड़ा सा होता है, अगर हम उस मौके को गवाते फिर हम अंदर उस द्वार के नहीं जा सकते। but you always have to be prepared. इसीलिए जरूरी है कि हम तैयार हों। Amen. Amen. You have to be prepared to enter the door. If you are not prepared well in advance, और अगर हम शुरू से ही तैयार नहीं है तो फिर हमें गलत समय पर तेल लेने के लिए जाना the पड़ेगा। Lord will say, I don't know you. और फिर प्रभु हमसे बोलेगा कि मैं तुझे नहीं जानता, I don't know you. मैं तुझे नहीं जानता। Amen. Okay, just Acts chapter 14:27 and Colossians, and then I'm done. Colossians 4 verse 3. 14:27
And Colossians 4 verse 3. Someone can read it quickly. Kadesh, read. And when they arrived and gathered the church together, they declared all that God had done with them and how He had opened the door of faith to the Gentiles. Amen. और प्रेरित 14:27 में लिखा है, वहां पहुंचकर उन्होंने कलीसिया इकट्ठी की और बताया कि परमेश्वर ने उनके साथ होकर कैसे बड़े बड़े काम किए और अन्य जातियों के लिए विश्वास का द्वार खोल दिया। Amen. We got to understand there is a door of opportunity. Once we carry the anointing, once we carry the oil and we pray for people, what we're doing? What are we doing? We are giving them the oil. तो जब हमारे पास तेल है और हम दूसरों पे वो तेल लगाकर उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम वो तेल उनको दे रहे हैं। Yes, when we are praying for people, when we have an opportunity to pray for people, don't say fire. तो जब हमको मौका मिलता है दूसरों के लिए प्रार्थना, Can we have some just worship sometime? Thank you, Jesus. Shall we all focus the eyes of the Lord at this moment? आइए हम अपनी नजर प्रभु पर डालें। Thank you, Jesus. Thank you, धन्यवाद। Holy Spirit. Thank you, Lord. I want each one of you to be connected with your Maker. और मैं चाहता हूँ इस पर हम सब अपने रचने वाले पे गौर करें। I want you to say that this body, my body, is the temple of the Holy Spirit. मेरा शरीर और मैं चाहता हूँ अभी हम सब बोले कि हमारा जो शरीर है वो पवित्र आत्मा का मंदिर है। मंदिर है My body is the temple of the Holy Spirit. और मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। Say it aloud. मेरा शरीर Declare पवित्र आत्मा का declare it to the Lord. Say it. Say आइए it. हम प्रभु My body is the temple of the Holy हे Spirit. प्रभु मेरा शरीर तेरा मंदिर है And no evil can dwell in this body. और मेरे शरीर में कुछ भी कोई दुष्ट दुष्ट नहीं रह सकता। आमेन। Thank you, Holy Spirit. Ora kalaba sundorama sikiri. Lord, I pray, God, this morning that if there's any evil in our hearts, if there's any evil थ्रो दैट आउट। प्रभु that we are carrying in our hearts, प्रभु अगर Deliver हमारे me, Lord. दिल में Set me कुछ free. भी दुष्ट है, कुछ भी गलत मैं अपने हृदय में रख रही हूँ प्रभु, उस गलत से, उस दुष्टता से मुझे तू छुटकारा दे आमेन। fill me, Lord, with your presence. और मुझे अपनी उपस्थिति से भर दे। I need more of you. मुझे तेरी और जरूरत है। Thank you, Jesus, for healing me. प्रभु मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ कि तूने मुझे चंगा किया। Thank you, Lord, that you're a God of the supernatural. थैंक यू। यू आर द गॉड ऑफ द सुपरनैचुरल। Thank you, Jesus, that you are the Lord of the supernatural. थैंक यू जीसस, यू आर द लॉर्ड ऑफ द सुपरनैचुरल। And I thank you that you never change. दैट यू नेवर मैं तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि तू अद्भुत काम करने वाला प्रभु है और तू कभी भी नहीं बदलता। You're the same yesterday, today, and forever. यू आर द सेम तू आज कल और हमेशा के लिए एक ही है। Lord, help me to be ready. मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि तू मेरी मदद कर कि मैं तैयार हूँ, That I will always be ready to enter into the presence of God. कि मैं हमेशा तैयार हूँ तेरी उपस्थिति में आने के लिए। I'll always be ready to carry your presence wherever I go. मैं हमेशा तैयार हूँ कि मैं तेरी उपस्थिति को अपने साथ लेकर जाऊँ मैं जहाँ भी हूँ। I'll be an example, help me to be an example for your kingdom. आई वांट टू बी एग्जांपल फॉर योर Help me to be an example for your kingdom. तू मेरी मदद कर कि मैं तेरे राज्य के एक उदाहरण बनूँ, That would bring glory and honor to your name. तू तेरे नाम को महिमा लाए। I have failed, O Lord. आई एम अफ्रेड मैं हार जाती हूँ प्रभु, I've failed so many times मैं कितनी बार सो हार मेनी गई टाइम्स because of my own smartness. बिकॉज़ ऑफ माय ओवर स्मार्टनेस। I need your smartness. मुझे I need तेरी your बुद्धि की smartness. जरूरत है, I need more of you. मुझे तेरी जरूरत है। I need your will to be done in my life. मैं चाहती हूँ कि तेरी जो मर्जी है वो मेरी जिंदगी में पूरी And your will is a good,
always good. और तेरी मर्जी हमेशा अच्छी मर्जी है। Your will is not to harm me. तेरी मर्जी मेरी हानि के लिए नहीं है। Help me to stop hearing the wrong things what people are saying. It's impossible. मेरी मदद कर कि जो लोग बोलते हैं, जो गलत बोलते हैं, मैं वो उसको ना सूंघूं। Let me shut my ear gates मेरे जो कान के फाटक है, मुझे उनको बंद करने दे। गलत to the works of the devil. जो शैतान के काम है, उनके लिए बंद करने दे। But I know, Lord, with you said, with God all things are possible. क्योंकि तेरे वचन में लिखा है, तेरे साथ सब कुछ God, मुमकिन all है। things are possible. Hallelujah.